Hello everyone, my name is Toshif and I welcome you all on Grow with Code and Cloud. So in this video, I'm going to discuss about the various OOPS concepts that we have available in Java. So we will be having overview only. We are not going in detail of each and every OOPS concepts. Okay, that later I'll be discussing in detail for each and every concepts of OOPS, right? So what is class? In this video we'll be discussing about what is class, what is object, what is inheritance, okay, what is encapsulation, what is abstraction, what is polymorphism, and the types of inheritance and types of polymorphism. So a bit we'll be discussing in this class. Okay, so let's get started. So the first is what is class. ओके क्लास क्या होता है जावा के अंदर? सो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. सो ऑब्जेक्ट which means variable, attributes, methods, constructors, what we can declare inside the class. Once you collect everything, that all will be belonging to a particular class. For example, let's discuss about the three-wheeler vehicle we have. Okay, two-wheeler vehicle we have, and four-wheeler vehicle we have. So once you collect everything together, so they all will be belonging to a particular class, which is vehicle. Like men, women. Okay, men is we can consider men as an object, women as an object. Okay, they all, when we collect, they all will be belonging to a class which is human. Okay, let's suppose we have banana, we have apple, we have mango. Okay, these all will be considered as an object. So once you collect everything together, they all will be belonging to a particular class, which will be fruit. So that's why it is called as class is the collection of objects. And what is object? Object is a real-time entity. Okay, what is object? Object is a real-time entity which has identity, name, state, behavior. So as I already said, like mango, banana, apple. Okay, all these are considering as an object which has identity, name, state, behavior. ठीक है, अगर टेस्ट करते हो तो वो खाने में मीठा मीठे लग सकते हैं. ओके, तो वो उनका बिहेवियर है. नेम है उनका, एप्पल बनाना उनका नेम है. उनका स्टेट है, अगर आप उनको कहीं पर रखते हो तो वो कुछ स्पेस कवर करते हैं, तो उनका स्टेट है. उनकी आइडेंटिटी है. तो जब आप इन सारे चीजों को कलेक्ट करते हो, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हो, तो वो एक क्लास से बिलोंग करते हैं. ओके, दैट इज फ्रूट. ओके, फ्रूट विल बी दी क्लास. टेबल ले सकते हो. ओके, चेयर ले सकते हो. इनको हम क्या ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं. इनका भी स्टेट होता है, नेम होता है, बिहेवियर होता है. लेकिन जब आप इनको कलेक्ट करते हो तो वो सब वुड क्लास से बिलोंग करते हैं. तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज अ रियल टाइम एंटिटी विच हैज आइडेंटिटी, नेम, स्टेट, बिहेवियर. इसी तरीके से जब आप एक एक्चुअल क्लास के अंदर, ओके, रिलेटेड टू कोडिंग, एक्चुअल क्लास के अंदर जब वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल का नाम हम डिक्लेयर करते हैं. वो एक मेमोरी ऑक्युपाई करता है. उसका स्टेट होता है कि आप वो किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा. तो जब उनको आप कलेक्ट करते हो तो वो किसी ना किसी क्लास से बिलोंग करते हैं, क्योंकि क्लास के बाहर तो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर नहीं सकते हैं. Okay, now the next is inheritance. What is inheritance? Object of one class will be having or acquiring the properties and behavior of another class is called inheritance. ठीक है, इनहेरिटेंस में हमें बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत है. इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आया क्यों है, करेक्ट, क्यों इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, क्योंकि सी लैंग्वेज में देखोगे तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है. सी प्लस प्लस के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है. तो क्यों इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आता है और इनहेरिटेंस होता क्या है, तो आई विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल इन आवर अपकमिंग वीडियोस. सो एज ऑफ नाउ, जस्ट remember this, the definition of inheritance. Object of one class can have or acquire properties and behavior of another class is called inheritance. Or now let's see the types of inheritance. We have multiple types of inheritance, like single level inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, and hybrid inheritance. Okay, so these types of inheritance also I'll be discussing in detail
and we'll be having a practical example as well. In this 5 types of inheritance, the very most important is like inheritance is, that is multiple inheritance. If you are going for a Java interview, you can definitely expect this question in interview, like what is multiple inheritance. And if you discuss this multiple inheritance, there is lot of things to discuss, and there is lot of things that will show your knowledge, that whether you have knowledge on Java or on inheritance or not. Okay, then later we have encapsulation. The another type of oops concept is encapsulation, which means wrapping or banding. Let me open encapsulation. Wrapping or banding more than one data together in a single unit will be called as encapsulation. Okay, wrapping or banding more than one data together in a single unit, okay, is called encapsulation. Like capsule or ओके फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, जो भी चीजें आप अपने सामने देख सकते हो वो सब एग्जांपल होगी इनकैप्सुलेशन की। अगर अभी आपके हाथ में मोबाइल फोन है, वो एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। अगर आपके हाथ में रिमोट है, वो भी एक इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। अगर आप सामने टीवी देख रहे हो, वो भी इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। अगर आप फैन को देख रहे हो, वो भी इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। इनकैप्सुलेशन, या फिर अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो वो भी इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल है। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ बुक। तो जब भी हम बुक पढ़ते हैं तो उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर हो सकता है, 2 चैप्टर हो सकता है, 3 चैप्टर हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है। 5 चैप्टर उनको मिलाकर के एक बुक बनता है। तो रैपिंग और बाइंडिंग मोर देन वन डेटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट, रैपिंग और बाइंडिंग, ठीक है। अलग अलग चीजों को जब कलेक्ट करते हो, जब रैप करते हो, जब बाइंड करते हो, तो एक यूनिट बन जाती है। उसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के मेडिसिन मिले हुए होते हैं। जब उनको रैप, उनको बाइंड किया जाता है, एक प्लेस पर रखा जाता है, देन उसको इनकैप्सुलेशन कंसिडर किया जा सकता है। फैन है, फैन के अंदर में कंडेंसर होता है, आपका वायर होता है, मैग्नेट होता है, ब्लेड होता है, बहुत सारी चीजें होती है। जब उनको एक जगह पर बाइंड की जाती है तो एक यूनिट बनता है, दैट इज कॉल्ड फैन। अब कंप्यूटर देखते हो, कंप्यूटर माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, ओके, रैम होता है, इंटरनल मेमोरी होती है। तो इन सब चीजों को जब एक जगह पर बाइंड की जाती है तो एक यूनिट बनता है, दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर, ओके, विच इज द एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट, रैपिंग और बाइंडिंग मोर देन वन डेटा टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ये भी हम प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देखेंगे इन आवर अपकमिंग वीडियो। द नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन which means, let me open it. Okay, abstraction which means hiding the implementation or unnecessary details from the user or customer and showing only the functionality, okay, is called abstraction. abstraction को data hiding भी कही जाती है। अब कोई कस्टमर है जिसने आपको कोई रिक्वायरमेंट दी थी कंप्लीट करने के लिए, आपने रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर ली। अब वो कस्टमर जानना चाहता है क्या कि आपने कैसे किया, बैकएंड में आपने क्या क्या किया है, किस टाइप की कोड्स लिखी हैं, कितने नंबर ऑफ क्लासेस बनाई है, क्या डेटाबेस आपने यूज किया है, क्या वेरिएबल आपने यूज किया है। उससे उसको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो एग्जीक्यूट करेगा, वो फंक्शनैलिटी चेक करेगा, उसको फंक्शनैलिटी से मतलब है। आप एज अ कस्टमर जब कार बाय करने के लिए जाते हो तो आप ये देखते हो क्या कि इंजन काम कैसे कर रहा है, कनेक्टिविटी कैसे दी गई है, अंदर में फ्यूल कैसे इंजन के तरफ जाता है, ओके, कैसे फ्यूल कंज्यूम होती है, माइलेज कैसे कंज्यूम होता है, माइलेज कैसे कैलकुलेट की जाती है। नहीं ना, आप फंक्शनलिटी देखते हो कि मैं रोड पर लेकर निकलूंगा, चलूंगा तो इसका लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, आगे चलनी चाहिए, ठीक है, और बंद नहीं पड़नी चाहिए, खराब नहीं पड़नी चाहिए। तो आप इसकी फंक्शनलिटी चेक करते हो, ना कि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हो। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर में आपने ए बटन प्रेस किया तो ए मेरे नोटपैड के ऊपर टाइप होना चाहिए। अब वो कैसे इंटरनली कनेक्टेड है, कैसे काम कर रहा है, वो उससे हमें लेना देना नहीं है। सो दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन एंड शोइंग ओनली द फंक्शनलिटी, ठीक है। काम कैसे कर रहा है वो दिखाना, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया गया है वो नेसेसरी नहीं है। अभी आप फोन कॉल लगाओगे अपने फ्रेंड को, ओके, नंबर प्रेस करोगे, नंबर डायल करोगे, कॉल लगाओगे, सामने वाला कॉल रिसीव करेगा, आप बात करोगे। अब वो कैसे सैटेलाइट से जा रहा है, सैटेलाइट से वो कैसे रिसीव कर रहा है, इंटरनली कैसे ये वर्क कर रहे हैं, इनसे हमें लेना देना नहीं है। दैट इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन, बट वी डोंट नीड टू नो अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, वी आर ओनली
लुकिंग फॉर दी फंक्शनलिटी, फंक्शन करना चाहिए कंप्लीट, जिस चीज के लिए मैंने अप्लाई किया है, जिस चीज जो फंक्शन मैं टेस्ट करना चाहता हूँ वो फंक्शनल होना चाहिए, वो वर्क करना चाहिए सही से। किस तरीके से बना है उससे मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, ओके, एंड शोइंग ओनली द फंक्शनलिटी इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। सेम एग्जांपल हो सकता है इसका भी, जो भी आप एग्जांपल देखते हो इनकैप्सुलेशन का, सेम एग्जांपल एब्स्ट्रैक्शन का भी होता है। फैन है, आप बटन प्रेस करोगे फैन मूव करना स्टार्ट हो जाएगा, अब अंदर कैसे बना हुआ है उससे मुझे लेना देना नहीं है, और फैन एग्जांपल है इनकैप्सुलेशन का भी। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन का भी, क्योंकि मैंने कॉल कनेक्ट किया, कॉल कनेक्ट होना चाहिए, बात होनी चाहिए, अब इंटरनली कैसे वो इम्प्लीमेंटेड है वो उससे मुझे लेना देना नहीं है। लेकिन एक फोन को बनने के लिए अंदर में बहुत सारी चीजें यूज की जाती है, ओके, देन एक फोन, एक यूनिट बनता है, एक फोन बनता है। तो जो भी चीजें आप एग्जांपल देखते हो इनकैप्सुलेशन का, सेम वो सारी चीजें एग्जांपल आपके एब्स्ट्रैक्शन की भी बनती है। For this also we will be seeing practical example in our upcoming video. Then next and the last uh, topic is polymorphism. Okay, what is polymorphism? Poly का मतलब होता है many और morphism का मतलब होता है forms. So in technical term, an object will be having more than one form, or an object has more than one forms, or a single task can be performed by multiple ways. A single task can be performed by multiple तरीकाज is called polymorphism. एक ही काम को करने के अलग अलग तरीके को polymorphism बोलते हैं। एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग फॉर्म्स, लाइक लेट्स फॉर एग्जांपल पल्सर 125, पल्सर 150, पल्सर 180, ओके, पल्सर 220, सेम ऑब्जेक्ट सेम है बट उसके फॉर्म अलग अलग हैं। तो आप एक क्लास के अंदर एक मेथड डिक्लेयर करोगे, एम नाम की मेथड, उसके अंदर पैरामीटर पास करोगे, सेम नाम का एक और मेथड डिक्लेयर करोगे, उसके अंदर कुछ डिफरेंट पैरामीटर पास कर दो, टाइप में या फिर नंबर में डिफरेंट कर दो। एक और सेम नाम का मेथड डिक्लेयर कर दो, उसके अंदर और डिफरेंट पैरामीटर पास कर दो। तो एन ऑब्जेक्ट हैज मोर देन वन फॉर्म्स। एक क्लास के अंदर में एक ऑब्जेक्ट आपने डिक्लेयर किया, उसी सेम ऑब्जेक्ट आप रिपीट कर रहे हो बट उसके फॉर्म को चेंज कर दे रहे हो। सेम नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। सो सिंपल टर्म में याद रखो, पॉलीमॉर्फिज्म means an object has multiple forms or a single task can be performed by multiple ways is called polymorphism. जैसे रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, रनिंग, ठीक है, आप रनिंग कर रहे हो, बहुत सारे लोग रनिंग कर रहे हैं, टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है, रनिंग, लेकिन सबके रनिंग करने का तरीका अलग है। कुकिंग, ठीक है, किचन में कुकिंग हो रही है, चार लोग मिलकर के कुकिंग कर रहे हैं, टास्क क्या परफॉर्म हो रहा है, कुकिंग, लेकिन सभी के परफॉर्म करने का तरीका अलग है। डांसिंग या कोई सा भी एक ऐसा एग्जांपल ले सकते हो जो एक ही काम को अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। एंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इन जावा, okay, that is, first one is compile time polymorphism, which is also known as static binding, and the another one is runtime polymorphism, which is also known as dynamic binding. And method overloading is the example of compile time polymorphism, and method overriding is the example of runtime polymorphism. Method overloading के केस में हम क्या करते हैं, एक ही क्लास के अंदर में सेम नाम का मल्टीपल मेथड हम डिक्लेयर करते हैं, सेम सिग्नेचर सेम रहेगा, नाम सेम रहेगा, बट उसके अंदर पैरामीटर्स हमें डिफरेंट करने पड़ेंगे, तो वो मेथड ओवरलोडिंग। तो आप देख सकते हो ना कि वही ऑब्जेक्ट वही है लेकिन उसके फॉर्म्स अलग अलग हमने कर दिए हैं। क्लास के अंदर सेम मेथड नाम सेम है, ओके, चार मेथड लिए हैं सेम नाम के, लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर पास होते हैं ना फंक्शन ब्रेसेस के अंदर, वो हमने डिफरेंट कर दिए हैं। तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे इन डिटेल विद प्रैक्टिकल इन द अपकमिंग वीडियो। एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, मेथड ओवरराइडिंग विल बी द एग्जांपल ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ओके। मेथड ओवरलोडिंग में आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट करेगी, फिर उसके अंदर के मेथड को अपने अंदर यूज करेगी, देन रन टाइम पे डिसाइड होगा कि कौन से ऑब्जेक्ट के अंदर का मेथड कॉल हो रहा है। तो okay, this will be discussing in the upcoming video. So as of now in this video, what you have to remember what are the various oops concepts we have in Java. Okay, there is class, okay. What is class? Class is the collection of objects. Class is the blueprint or the collection of objects. What is object? Object is a real-time entity which has identity, name, state and behavior. Okay, next, what is inheritance? Inheritance, which means object of one class will be having properties or behavior of another class,
and there are various types of inheritance we have. Okay, that is single level inheritance, multi-level inheritance, hierarchical inheritance, multiple inheritance and hybrid inheritance. So इनमें से कौन सा inheritance जावा सपोर्ट नहीं करता है वो हम डिस्कस करेंगे लेटर. कुछ inheritance इसके अंदर है जो जावा सपोर्ट नहीं करता है. क्यों सपोर्ट नहीं करता है, all in detail we will be discussing in the upcoming video. The next is encapsulation. Wrapping or binding more than one data together in a single unit is called encapsulation. Okay, now next is abstraction. Abstraction, which means hiding the unnecessary details, hiding the implementation, okay, and showing only the functionality to the user or customer, okay, is called abstraction. And the example you can see, whatever example we have available for encapsulation, all the example will be for the abstraction also. Then what is polymorphism? Okay, poly means many, morphism means form. An object has more than one forms or a single task can be performed by multiple ways is called polymorphism. There are two types of polymorphism we have in Java. One is compile time polymorphism, which is also known as static binding, and method overloading is the example of compile time polymorphism. Next is runtime polymorphism, which is also known as dynamic binding, and method overriding is the example of runtime polymorphism. Okay, that's it for this video. अगर की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके से इजी लैंग्वेज में, ओके, इजी टर्म में हम डिस्कस करेंगे जावा के सारे टॉपिक्स को. तो अगर कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट notifications, latest updates, whatever I'll be providing in this channel. Okay, yeah, thank you for watching the video.